आपने बदल दी, आपने एक एफर्ट से उस एक काफी इंक्लूसिव बच्चे इस तरह एफर्ट। से, एक एग्जांपल मैंने दिया, काफी बच्चे ऐसे है जो हाँ आज अच्छा काम कर रहे हैं। एक एकेडमी ज्वाइन किया है खुद ने, 4 लाइब्रेरी चलाता है, पढ़ाता है किसी को, वो बच्चा भी ऐसे है, बहुत से बच्चे। लेकिन अभी रिसेंटली एक एग्जांपल आपको दिया मैंने। हाँ सर, ये है, क्लास में है, और हमारे आर्ट्स में तो ज्यादा है, उनको पुश करना पड़ता है, बच्चों को आगे लाना पड़ता है। हमें ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये आसान है, बट इट इज डूएबल, and that is why I deliberately taken this topic. The diversity is being invited to the party, and inclusion is being asked to dance. And when you make this happen now, they will remember you, they will love you forever. है ना सर? जी हाँ सर, जी जी जी। अनिल सर कुछ कह रहे थे शायद। हाँ, वो पहले थोड़ा मुझे समझने में, एक तो मैं हॉस्पिटल, पापा इधर हॉस्पिटल में है तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, हुआ नेटवर्क का प्रॉब्लम। कोई लेकिन कुछ दिक्कत कुछ समझ में आ रहा था, और कुछ थोड़ा मुझे, मेरा भी इंग्लिश की वही समस्या है जो नहीं, आपने दैट्स फाइन। एग्जांपल दिया था। हम सब लोग एक ही बोट में हैं, वी ऑल आर द सेम। जी अनिल जी सर जी कुछ कह रहे थे शायद, अनिल सर, डॉक्टर अनिल सर। ओके, लेट्स मूव अहेड। इज एनीवन, अगर आप में से कोई कुछ और शेयर करना चाहता हो, और वी कैन मूव अहेड। एनीवन एल्स? ओके, तो मान लो ये एक्सपीरियंस क्लियर है, सबको समझ में आया? जी सर जी। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। Let's have now next. Now let's have quickly, like you can say, a quick review of diversity in our classroom. Whatever we have discussed, we may have socio-economic diversity, जहाँ पे हम इनकम की बात बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को, अर्बन और रूरल बैकग्राउंड के बेसिस पे करते हैं, कास्ट के बेसिस पे करते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब कि जो बच्चे अपने घर में परिवार में पहले हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में आए हैं, उनके बेसिस पे हम कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बेसिस पे भी हम बच्चों को क्लासिफाई कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप डाइवर्सिफाई करते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि 22 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली इंडिया में। इंडिया में इंग्लिश वर्सेस जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के बेसिस पे, रीजनल डायलेक्ट के बेसिस पे, या कम्युनिकेशन स्टाइल के बेसिस पे, लोग एसेंट में थोड़ा सा चेंज होता है। बिहार के लोगों का एसेंट अलग होगा, महाराष्ट्र के लोगों का थोड़ा एसेंट अलग होगा। That is also a diverse type. Cultural basis पे, yes, we may feel diverse scenarios in terms of the religious background. We can find out in terms of the cultural norms, in terms of the gender roles and expectation, and in terms of food habits also. We also find diversity in cognitive way, means learning style, information process, neurodiversity or prior knowledge level, and we also find diversity in physical level. Like you can say, students from especially able students, like some are mobility differences are there, visual impairment are there, hearing impairment are there, fine motor skills, yeah, or chronic health disease. So these all are diversity in our classroom. Some of them may exist definitely in our classrooms, and you have already experienced that. So recognizing and addressing all this dimension of diversity is essential for truly inclusive education. That is my submission at this point of time. So I just want to hear from you. If I would like to ask, what is the biggest challenge you face regarding student diversity in your classroom? What you feel as a biggest challenge? Is it the language and communication barrier, as some of our fellow friends have mentioned? Or you feel socio-economic diversity or disparity, as some of you have also mentioned? Or it is a wide, varied learning needs, or it's a curriculum adaptability? Out of these four, what you feel is the biggest challenge you feel regarding student diversity in your classroom? Please do tell me, इन चारों में से आप किसको
अपनी क्लास में एक बिगेस्ट चैलेंज मानते हो? मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। मेरा क्वेश्चन है, what is the biggest challenge you face regarding student diversity in your classroom? First, I say language and communication barriers. Second, socio-economic disparity, means resources और टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम। थर्ड, वेरिड लर्निंग नीड्स, यानी कि सबके लर्निंग स्टाइल अलग अलग हैं। या करिकुलम एडेप्टेबिलिटी। इन चारों में से आप किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा चैलेंज मानते हो? आई वॉन्ट योर ओपिनियन। इट्स द पोल टाइम। बताइए, whatever you feel like the biggest challenge in your classroom, in your opinion, please tell me. Curriculum adaptability. Okay, curriculum adaptability means making content Responsibility. relevant for all the backgrounds. Okay. Okay, so you, Flexibility in contents. okay, Anil sir, flexibility in time. So, purpose, I think we have a provision of revising the curriculum for every 3 to 5 years in our BOS, Yes. Board of Now we Studies have meeting. added हाँ, NAP. Different subjects are coming. अनिल There is सर ये आप कुछ diversity. कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। There should be continuous improvement. हाँ, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता तो है सर। आप क्या क्या सिलेबस रिवाइज नहीं होते सर? अनिल सर होते ना होते हैं ना, the तो वो, curriculum. हाँ तो वो इसी का पार्ट है सर। हाँ, कुछ और कह रहे थे धर्मपाल सर, कुछ कह रहे थे आप शायद। एनीवन एल्स? Yes, Flexibility. sir. Flexibility. Socio-economic diversities. सर थोड़ा तेज बोलेंगे, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। Socio-economic diversity is big problem. ओके, आपको लगता है सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है? ठीक, एनीवन एल्स? सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, श्वेता मैम भी कह रहे हैं। मैम आप कंप्लीटली अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। Feel comfortable. If you feel like you can unmute yourself and share. Okay. Anyone else? कोई और कुछ कहना चाहेगा? आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बड़ा चैलेंज है आपके क्लास के लिए, इन योर क्लासरूम? लैंग्वेज बैरियर आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बड़ा बैरियर है आपकी क्लास के लिए? Yes, sir. It is the biggest barrier. Yes, ओके, गाइड लर्निंग नीड्स, इसके बारे सर में ये क्या भी ख्याल है? सबसे यानी बहुत बड़ी समस्या है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड ऑल. Like Meenal ma'am and other people will agree, because for example, if you have to teach numerical subject, accountancy as a matter of fact, हाँ, 11th and 12th they learn and understand in a different style and manner, and when they come the terminologies or the interpretation of the subject as such. So learning style बहुत different हो जाते हैं, and then they go to tuition class, so it becomes very difficult for them to adapt one learning style, you know, क्योंकि 11th तो अलग Grasping power is very होते हैं. low for junior students. जी अनिल सर क्या कह रहे थे? Grasping power जो बच्चों का है वो कम रहता है 11th 12th में. When they enter into the first year, they did not match with us. ऐसे बोल सकते हैं. अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, आप सब लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है लैंग्वेज बैरियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई कह रहा है वेरी लर्नर नीड्स इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, कोई करिकुलम एडेप्टेबिलिटी के बारे में कह रहा है, कोई सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के बारे में कह रहा है। इम्पोर्टेंट तो चारों हैं, है ना? ये इस पे तो मैं अभी एक पेपर भी लिख रहा हूँ, बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से इनमें से सबसे ज़्यादा क्रूशियल क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज आपको आपकी क्लास में क्या लगता है इन चारों में से?
इन चारों में से आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अपनी क्लास में? For me, to learning a language and communication barrier. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर. ओके. Yes, sir. Yes, sir. I think Sarita ma'am is absolutely right. Language and communication barrier is the biggest challenge. They don't understand, and how can we teach? Because the language, like language भी एक बार ठीक है, but communication barrier में there is never a two-way communication. It is Yes. always one-way communication that we have, and on the response from the other side is like a question. So we यार have दोनों to. हाथ से ताली नहीं बजती. देखिए, आप लोग इस बात को समझते हैं इसलिए आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं. मैं चाह रहा था कि बाकी बाकी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हैं, सर्टिफिकेट तो सभी को मिल जाएगा, वो लोग भी इंटरेक्ट करें. मेरे ख्याल से सभी के अनुभव एक एक दूसरे से मैच करते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि ये लोगों ने बोला है तो हमारे सेम पिच टाइप. सेम पिच नहीं है. They are अब बोलते सब एक ही बात है, बट they सबकी feel सबके they feel so we are एक्सपीरियंस है ना. representative. We need experiences because that's why we can feel like we. वही है, इंक्लूजन वाली बात तो तभी आएगी ना जब हम में से हम में ज्यादा लोग Participation is must, sir. Participation must be active. जी, आई डू एग्री सर. मेरा भी यही कोशिश रहती है कि हम सब पार्टिसिपेट कर पाए, हम लोग तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए. Yes, sir. सर अभी यूनिवर्सिटी से क्या हो गया कि तीनों मीडियम के छात्र एक ही क्लास में बैठते हैं और उनके छात्रों को कौन सी भाषा में पढ़ाए, ये बड़ी समस्या है. तो ज्यादातर छत्तीसगढ़ के छात्र हिंदी मीडियम के हमारे यहाँ है, तो उनको मराठी समझने में तकलीफ जाती है. मराठी वाले बच्चे हिंदी समझ लेते हैं, तो अंग्रेजी वाले हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए ज्यादातर हम हिंदी में पढ़ाते हैं. लेकिन जो मजा हर लैंग्वेज में जब पढ़ाते हैं और जो बच्चों के चेहरे में जो पॉजिटिवनेस दिखता है अपने को, तो वो नहीं कुछ बच्चों के दिखता है. जैसे हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी के बच्चे आनंदी और वो रिस्पॉन्स उनकी यहाँ से आता है. मराठी वाला थोड़ा लूज, इंग्लिश वाला, तो ये एक बड़ी समस्या ये एनईपी के कारण निर्माण हुई है, मुझे ऐसे लगता है, मेरा अनुभव. आइए देखते हैं और हम क्या कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं लैंग्वेज की वजह से. श्रद्धा मैम. जी मैम, क्या कह रहे थे आप? थोड़ा तेज बोलेंगे प्लीज. कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं सर. एक्चुअली इंग्लिश वाले बच्चे कंपैरेटिवली थोड़े स्मार्ट होते हैं जब लेके बैठते हैं, और हिंदी मराठी वाले कंपैरेटिवली थोड़े वैसे ही हम तो उनको बहुत मोटिवेट करना होता है. और जब तीनों मीडियम लेके बैठ रहे हैं तो जो समस्या सामने आ रही है वो ये है कि बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं करते. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम. मेरा अभी ये पेपर एक एबीटीसी जनरल में एक्सेप्ट हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा. और हमने 800 लोगों का सर्वे किया है, 800 एकेडमिशियंस का, एंड दे फाउंड कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज स्पेशली इन हायर एजुकेशन लेवल इन इंडिया. एंड सेकेंड नंबर पे उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सेकेंड नंबर पे एक चैलेंज है. थर्ड नंबर पे दे हैव सेड वेरी लर्निंग नीड्स, एंड फोर्थ दे हैव मेंशन्ड द curriculum adaptability. This is the findings. This is the survey response which I get from my side. Sir, can I stop you now? हाँ, प्लीज बताइए. Sir, NEP is not implementing in all states. Why? Like that, Curriculum, sir? कैसे? NEP, हाँ. NEP, National Education Policy हर स्टेट में लागू नहीं है ना. ठीक है. हाँ. सर अभी अभी उस पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. अभी एक जनरल बात कर रहे हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उस डिटेल डिस्कशन पे जाऊंगा तो शायद हमारा टॉपिक कहीं पीछे छूट जाएगा. मेरा टॉपिक है कि आप जो भी आपका करिकुलम है, करिकुलम के बारे में बोल रहा हूँ. करिकुलम में जो भी आपका करिकुलम है, आपके यहाँ जो भी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है, if students are there, Yes. then it is our responsibility to embrace this diversity with inclusion. Okay. And we are here to understand, to discuss how this is important and how we can do it. Something regarding that.
Yes. despite all the challenges we have. ठीक है ना अनिल सर? Yeah, okay, sir. हेलो, एम that आई is that ऑडिबल? is the point. हाँ प्लीज बताएं. सर, जो मैंने मैसेज में ड्रॉप किया था सोशो एंड इकोनॉमिकल डाइवर्सिटीज़ के बारे में, तो जी मैम. पहले तो सर ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ इट इज़ रिलेटेड विद द ड्रामेटिक्स एंड एक्टिंग. सो हम यहाँ पे वीएमबी कॉलेज में ही हमारा डिपार्टमेंट है. तो वी ठीक डू है. नॉट फाइंड एट ऑल अ प्रॉब्लम रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज हमारे है. यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर और कम्युनिकेशन का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम इज़ एक्सप्रेशन. तो हम थिएटर और आर्ट से एक्सप्रेशन से हम सब चीज़ें समझ जाते हैं. सो हमको इंग्लिश, हिंदी, मराठी इन चीज़ों की दिक्कत मतलब नहीं नहीं. जाती है. बिल्कुल. लेकिन सोशो और इकोनॉमिकल ये डेफिनेटली डाला है, क्योंकि वेयर एज द फील्ड रिलेटेड टू द परफॉर्मिंग आर्ट्स इज कंसर्न, so it is majorly a repercussion of all the experiences of they Right. have been through in their life. तो उसके लिए हमें सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो आता है बच्चों का, उससे बहुत मैटर करते हैं. तो दस आई जस्ट वांटेड टू शेयर द थिंग. श्वेता मैम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एंड देखिए डाइवर्सिटी कितना कितना पॉजिटिव चीज है. हम जो कुछ लोग कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट के हैं, शायद साइंस के भी कुछ लोग हों, आप आर्ट्स एंड म्यूजिक से हैं. आप देखिए कि अलग अलग करिकुलम की, अलग अलग स्ट्रीम्स की कुछ ब्यूटी है, कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और अकॉर्डिंगली वहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं. एंड दैट इज़ वाई मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे पता चला कि ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा. और इन चारों में हमने देखा कि जो मैंने सर्वे किया डेफिनेटली उसमें साइंस और कॉमर्स के रिस्पोंडेंट ज़्यादा थे. सो व्हाट आई फाउंड इट कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर, टेक्निकल कोर्सेज के रिस्पोंडेंट ज़्यादा थे फैकल्टी मेंबर्स, तो उन्होंने उसको मार्क किया, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपस में डिस्कशन में भी देखा. बट जो सेकंड बेस्ट था, जो सेकंड ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज था, जो आपने पॉइंट आउट किया, सोशियो इकोनॉमिक बैरियर ही है. इक्वली बहुत इम्पोर्टेंट. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, और मैं भी एग्री करता हूँ, और हमारा रिसर्च भी इसको वेट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. मैं थोड़ा सा आपका टाइम और ले लूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग और डिस्कस कर ले, फिर ब्रेक ले लेंगे. ठीक है, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल. Okay, okay. अविनाश सर, अनिल सर, से 10-15 मिनट हम लोग और डिस्कस कर ले कुछ चीजें, फिर हम लोग ब्रेक ले लेंगे. ठीक है. Okay, sir. Okay. कुछ वरना अभी हम लोग को बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है. हम लोग ये आप लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग बहुत पार्टिसिपेटिव हो, आप लोग बहुत अच्छे हो. मुझे भी बहुत सीखने को मिल रहा है. मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के साथ जुड़ करके कि आप लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो. और हम एज ए टीचर हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं. आपको, मुझे सबको मालूम है डाइवर्सिटी क्या, इंक्लूजन क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, बट द पॉइंट इज कि क्या और कैसे करें, ये वाली बात है ना. कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें जो आपसे सीख सकते हैं हम लोग आपस में, वो इम्पोर्टेंट है. तो थोड़ा सा हम लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, एंड देन वी विल हैव अ ब्रेक, और फिर हम लोग आगे चलेंगे. प्लीज लेट्स स्टार्ट फर्दर. सो अभी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, एंड आई फाउंड कि आप लोग शायद एग्री कर रहे हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट चैलेंज यू feel in your classrooms, you face in your classrooms. And secondly, you came out as a socio-economic disparities second number. Now let me link diversity to inclusion. जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सोशल आइडेंटिटी एंड ग्रुप्स. मींस हु इज इन आवर क्लासरूम. ये डाइवर्सिटी हो गई ना, डेमोग्राफिक के बेसिस पे ले लो, बैकग्राउंड के बेसिस पे ले लो, व्हाटएवर द वे. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन, इट सेज about intentional ongoing engagement with diverse in the ways that enable all the individual to participate fully. Means how people experience environment, belonging, respect, support, value. I hope you can recall
जो अभी हमने पार्टी वाला एग्जांपल दिया था. So that is all about inclusion. So if we can make inclusion, then we can create a better environment for our students. I hope you all are agree with this thing. Now, inclusive classroom doesn't just accommodate the diversity; it celebrates it. This is the funda. Inclusive classroom doesn't accommodate the diversity; it celebrates it. Now, let me just give you a inclusive education define what is defined in NEP and how we can just quickly have a look of the inclusive education. When we're talking about inclusive education, we mean that it involves transforming the education system to accommodate the diverse need of all the learners. And when we're talking about learners, it is not just limited to a student. It's all the stakeholder in the entire process, including we as a teacher, because we also learn from our students and ensure that all the children or students have access to the quality education and meet the basic learning needs and enrich their lives. When we talk about that, we actually intended how we can do it, like access, participation, achievement, and equity. I'm not talking about equality, rather, I'm talking about equity, means fair, just, and just practice. So, there are some key principles and guiding framework. I'm just skipping as of now. Moving further, when we are talking about NEP 2020, as one of you person, Anil sir have mentioned, NEP is intended. I taking this word very carefully, intended for equitable access, teachers development, and flexible curriculum. ये तीन बेसिक प्रोविजन रहे हैं एनपी के. ठीक है. Yes, we have certain limitation, like implementation capacity is one of the challenge. बट अभी हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. अभी हमको उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए. आइए अगर हम प्रोविजन की बात करें, हायर एजुकेशन में हम इंक्लूजन कैसे लेके आएंगे और व्हाट वी कैन डू. इक्विटेबल एक्सेस, टीचर एम्पावरमेंट, जैसे कि अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा है, फ्लेक्सिबल करिकुलम, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स एंड रीजनल लैंग्वेज. इफ वी कैन डू दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली जो इक्विटी और इंक्लूजन का जो फंडामेंटल प्रोविजन है ना, जो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की अवधारणा है, जो जेंडर इंक्लूजन के बारे में बात की गई है, डेफिनेटली वी कैन एबल टू अचीव दैट इन अ मोर पॉजिटिव एंड efficient manner. Now, if we talk about the teacher's competency, which is the heart of inclusion, then emotional intelligence is the cornerstone of effective inclusive teaching in a diverse classroom. आपके टीचिंग में जब इमोशंस इंक्लूड हो जाते हैं, आप देखो कितना इम्ब्रेस हो जाती है क्लास. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, वी नीड फ्यू थिंग्स, लाइक वी नीड self awareness, we need empathy, we need social skills, we need self regulation, and we need motivation. Everyone, all are you with me so far? Yes, sir. Continue. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं, इमोशनल no. इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव इंक्लूसिव टीचिंग. ये सही है. Yes. सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सोशल स्किल, सेल्फ Yes. रेगुलेशन एंड मोटिवेशन Motivation. इम्पोर्टेंट है. Yes. बिल्कुल ठीक. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. आई हैव इंटरेक्टेड ए लॉट, और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, वी हैव अ गुड pool of friends, collaborators, and they have their own experiences which I have quoting. But research की अगर हम बात करें, research shows that faculty with higher in emotional intelligence having 64% higher student satisfaction scores in a diverse classroom. So आप ये समझ सकते हो
कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक डाइवर्स क्लासरूम को हैंडल करने के लिए और स्टूडेंट्स के इंक्लूजन में उनके सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने में कितना इम्पोर्टेंट है ना. दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग इट हियर. नाउ just 2-3 more points. अगर हम हाउ इंक्लूसिव इन आवर इंडियन एजुकेशन इज, अगर इंडियन हायर एजुकेशन की बात करें कितना इंक्लूसिव है, तो कुछ अच्छी बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, GER आपका बढ़ा है 71 टाइम्स, जेंडर पैरिटी आपका इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और SC इनरोलमेंट अगर हम बोले सोशली डिप्राइव्ड जो लोग हैं उनका हायर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है. दैट इज वेरी गुड. There are some gaps. Still, there are some gaps. Like regional disparity is still a big challenge. Rural GER remains 40% lower than urban GER. That is still a big challenge even today. Digital divide की अगर हम बात करें, means ये कह रहा है only 27% of students having a reliable internet access. आप लोग जो लैंग्वेज बैरियर की बात कर रहे हैं, यस, लिमिटेड मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज एंड रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट, यस, दैट इज अ गैप. वेल टेकन पॉइंट जो आप लोग कह रहे हैं. एंड फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स still we have a very modest enrollment growth which need to be addressed as soon as possible. So my point is, and just how as a teacher you think we can address these gaps while building the successes. As a teacher आपको कैसे लगता है कि आप इस gaps को, ये आप ही लोगों ने बताए हैं, whatever is mentioning here you have validated it, yes ये है. आपको क्या लगता है एज ए टीचर हम इस गैप्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं? वेदर इट इज अ रीजनल डिस्पैरिटी, वेदर इट इज अ डिजिटल डिवाइड, लैंग्वेज बैरियर एंड लोअर इनरोलमेंट ग्रोथ रेट ऑफ PWD स्टूडेंट्स. एज ए टीचर आपको क्या लगता है हम इसको कैसे एड्रेस करके अपने सक्सेस को और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं? Sir, I want to say that assessment or audit to identify specific gap clearly, whether it's in skills, care, or performance. Okay. Anything else? Focused on targeted interventions. जैसे Focus on targeted intervention. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2-3 आइडेंटिफाई कर पाए थ्रेशोल्ड एरिया से. Yes, yes. टारगेट तो हमारा हमें सामने दिख गया ना. हाँ. अब ये देखो ना, रीजनल डिस्पैरिटी, डिजिटल डिवाइड, लैंग्वेज बैरियर, PWD स्टूडेंट्स, यही तो मेन चैलेंज अभी हम लोगों ने बात की है. अब इसके लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? बोलिए ना सर. Learning environment should be created, as well as वही बात है ना सर, हमें और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा. राइट. new challenges accept करना पड़ेगा. We have to accept new challenges. Anyone else? Okay. ठीक बात है, आइए आगे बढ़ते हैं. अब आप मुझे प्लीज ये बताएंगे, एक मिनट, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी क्लास इंक्लूसिव है? हमने डाइवर्सिटी की बात की थी, आपने कहा आपकी क्लास डाइवर्स है, राइट? मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे बताइए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट, क्योंकि हम में से कोई किसी को जानता नहीं है. वी ऑल आर मेट एट दिस प्लेटफॉर्म. आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हैं, पता नहीं हम लोग कब मिल पाएंगे. डू यू एक्चुअली थिंक दैट योर क्लास इज इंक्लूसिव? क्या आपको लगता है आपकी क्लास कंप्लीटली इंक्लूसिव है, मोस्टली इंक्लूसिव है, समवॉट इंक्लूसिव है या नहीं है? क्या लगता है आपको सर? मैम
क्या आपको लगता है आपकी क्लास इंक्लूसिव है? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हमारी क्लास डाइवर्स तो है, रीजनल डिस्पैरिटी वाले सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी, कल्चरल बेसिस पे भी, लैंग्वेज बेसिस पे भी. यस, वी हैव अ डाइवर्स बैकग्राउंड, बट डू यू फील दैट योर क्लास इज इंक्लूसिव आल्सो? Yes, sir, it is inclusive to a certain extent, in the sense like I'm teaching, if I'm teaching again entrepreneurship theory and practices, I ask the student to come up with some innovative idea. Depending upon their perspective, their background, depending upon their socio-economic ground, they come up with the ideas. Some of the ideas are like very different from the other ideas. जो बच्चा एक गरीब घर से आता है, वो कुछ छोटा सा आइडिया जो उसको समझ में आता है, जो उसके बैकग्राउंड में जो देखा गया है, जो नीड वैसा कोई उसने आइडिया लेकर के जो उसने नीड फील की है, जो उसने उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फील किया उसने. हाँ, वो ऐसा कोई आइडिया लेकर के आता है. तो डेफिनेटली इट इज इंक्लूसिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट. वी एनकरेज दोज आइडियाज एज वेल. सो बेसिकली इट इज पार्टिसिपेटिव लर्निंग. राइट, वंडरफुल. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम. समवॉट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज इंक्लूसिव. एनीवन एल्स? क्या हमें लगता है कि हमारी क्लास इंक्लूसिव भी है कि बस डाइवर्स ही है? एनीवन एल्स? support system, सपोर्ट सिस्टम मींस? special education support, the collaborations for the depression. अनिल सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, एज ए टीचर क्या आपको लगता है कि आपकी क्लास इंक्लूसिव भी है या सिर्फ डाइवर्स ही है? नहीं, दोनों है सर. अच्छा, तो इंक्लूसिव है तो कंप्लीटली इंक्लूसिव है, अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट है, समवॉट है, या बिल्कुल नहीं है? Somewhat है. Somewhat. समवॉट है ना. Yes. देयर इज लॉट टू बी डन. Yes. Yes. Yes, Very yes. true. एग्री. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है. चलिए एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, बस फिर हम लोग देख लेते हैं. So you are saying कि your class is mostly somewhat inclusive. Okay, just ये लास्ट अभी के लिए रखते हैं, इसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे. Can you actually please tell me some of the memorable encounter with your this diverse student classrooms, or a challenges you feel while teaching a student group, or a success story, any of that? क्या आप में से कोई अपनी क्लास का कोई एक सक्सेस स्टोरी या कोई एक चैलेंज जो उसने फील किया है, जो अभी तक आपने शेयर ना किया हो, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न कि आपने क्या और कैसे किया है? एनीवन? So can you share the PPT again, like the slide? Just a memorable encounter with your student in your classroom, in a diverse classroom, a challenge you face when teaching a diverse student group, any of that, whatever you feel comfortable. Yeah, I've got all the stories kind of memorable, challenging, as well as Any, whatever you feel most valuable at this point of time, if you can share with us, that's really wonderful. like Avinash has said, there was a student from no Gondia in a long time back who had come from like he had just lost his father, and his mama had studied in our college, so he was insistent that though the Bhatija should also study in the same college, though they used to stay in Kamti, like no more than 1 hour distance area, but still his mama made it a point that he should study in our college only. The boy was very disappointed at in the initial day, but then somehow I don't know, like he got in talking terms with me, and he was always a very nervous boy in the class, but I happen to kind of identify him that he has got that spark, but somehow due to his financial and other conditions, because that he had lost his father and his mother and sister, and he had to come and stay with mama,
So that was and being the only boy in the family, how his future would be, and other things, taking care of mother and sister. So he was a kind of a lost student. But then, over a period of time, during these 3 years of his graduation, and proudly can say that his post graduation, and while doing that, he was undergoing Okay. CA also. And now, when I look back and look at him as a very confident man who has completed his chartered accountancy, and now, like, doing wonders for him, he got his sister married off, and now taking care of mother. So, and जब ऐसे बच्चे स्पेशली इस सेटअप में जब हमें याद करते हैं, और एक छोटा सा हमारा मोटिवेशन एंड एक्नॉलेजिंग देयर एफर्ट्स इन देयर लाइफ, तो वो बहुत अच्छा फील कराता है. सरिता मॅडम, हाँ, तसं हाँ. मेघा रोकडे आपण तिला डेव्हलप केलं. हाँ, मेघा पण होती अशीच. ती इज नाउ इन फॉरेन. सर, वो दैट गर्ल ऑल्सो नो फ्रॉम मराठी मीडियम क्लास, बट Yes, yes. जनरली मराठी मीडियम से बोला जाता है, बट she was a very good orator, so we were suggest like, और बहुत बोल्ड भी बच्ची थी वो, तो हमने Inspired, उसको फिर yes. जर्नलिज्म सजेस्ट किया कि Yes, आगे yes. क्या आप कर खुद सकती है, देखो मैम, बिकॉज एज ए टीचर फ्यूचर ट्रैक पता नहीं होता है बच्चों को क्या करना आप खुद देखो चाहिए. एज ए टीचर, आपके उस इंक्लूसिव एफर्ट ने उस बच्चे की जिंदगी बदल दी, उस परिवार की डेस्टिनी बदल दी, और यू आर गिविंग हर एग्जांपल इन योर क्लास. मेरा ये कहना है कि हमारे छोटे से एफर्ट से वो बदला बिल्कुल, तो बिल्कुल. उसी के करने से हुआ. ये बट देन ही हैड दैट इन हिम कि ही कैन डू इट. उसको आपके इंक्लूसिव अप्रोच ने उसको कितनी पावर दी मैम, है ना? यस, यू कैन से ये देखो ना, ये यही दैट इज द पॉइंट. That is why we are discussing it. Yes, it is very important, and it is something which need to be addressed as much as it is needed. So let's have a break. हेलो, हाँ, प्लीज बोलिए सर, बताइए सर. मेरे तरफ 10 साल एनएसएस था कॉलेज का. हाँ, अब उसका भी पहचान त्रिपाठी करके एक स्टूडेंट है, कॉमर्स से बिलोंग करता है, जी. बहुत ही गरीब परिवार का. उसके पापा ठेला लगाते थे, तो बेचारा साइकिल से आता था. तो उसको मैंने मोटिवेट करके, तो आज सर वो एक अच्छा लॉयर है, और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को कॉलेज में भी आता है, हम सभी से मिलता है. बहुत अच्छा लगता है, और बहुत डेवलप कर रहा है, और सोशल फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. एनएसएस में था तो, और एक अच्छा वकील करके भी एक अच्छा काम कर रहा है. बहुत अच्छा. आपने अभी जो बात कही है ना सर, आप दोनों लोगों ने, इस पे मतलब मुझे भी एक बहुत अच्छी बात याद आ गई. बट मैं आप हाँ बताइए अनिल सर, बताइए. अपने जो चल रहा भी है, इसमें राखी साहू करके एक लड़की है. हाँ, हाँ. शी इज आल्सो अ स्टूडेंट, एज वेल एज शी इज नाउ एक्टिंग एज ad hoc basis. Okay. She has done NET, as well as she belongs to poor family, but she is now our colleague. अपने साथ में she is not talking. She should talk now. राखी साहू. दैट्स व्हाई मैं सर देखो, आप खुद भी आप लोग ये फील करोगे. आई एम टेकिंग ऑल द एफर्ट्स टू मेक श्योर कि आप में से जो भी थोड़ा भी आप लोगों को खुद भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. बट अगर आप प्लीज थोड़ा सा हेल्प करो, आप खुद भी पार्टिसिपेट करिए, सो दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एक्सपीरियंसेस, एंड वी कैन एक्चुअली embrace दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न, लिसन एंड शेयर. आफ्टर ऑल सर, टीचर्स हम लोग जब मिलते हैं तो we love to share, and this sharing will ensure we are on the right path. It may be say कि आपके यहाँ की सिचुएशन अलग हो, मेरे यहाँ की अलग हो, या कहीं और की अलग हो, but when we share our thoughts, our learnings, we share our experiences, we reinforce कि what can be done, है ना? So that's why I request you all to please be more participative. और आप लोग सर बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज सच में अटेंड करके. और नागपुर यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर्स होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं. लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट थे, एंड आई रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. और मैंने
ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, मैंने इसके पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर्स लिए हैं और सब जगह पार्टिसिपेंट्स में ये होते हैं, हमारे में कुछ लोग होते हैं जो शेयर करते हैं, एंड वी रियली फॉर्चुनेट इनफ कि यहाँ पे अच्छे लोग हैं, हम सब लोग हैं, हम लोग जितने भी हैं हम लोग रियली एक्टिव हैं. सो इट्स 5:45 अराउंड, एंड मुझे लगता है कि आप लोग चाहेंगे हम लोग छोटा सा ब्रेक ले ले. इफ यू से वी कैन टेक अ ब्रेक और वी कैन गो अहेड. आप लोग कहें सर एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. एक ब्रेक ले लेते हैं. सो इट्स 5:45, हम लोग 5:55 पे रिज्वाइन करें. करेक्ट सर, बिल्कुल. Yes. What is teacher-centric approach and what is learner-centric approach? After this break, we will discuss about that and we will move some of the very important things from here. Okay? So I request you to please. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, चलिए ठीक है. So break से पहले हम लोग बात कर रहे थे. We will discuss now the difference between teacher-centric approach and learner-centric approach. देखिए दो बेसिक पेडागॉजीज है, दो बेसिक आप इससे स्कूल ऑफ थॉट है. जब हम टीचर सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, इट इज समहाउ जो हमारा ट्रेडिशनल वे था, वेयर टीचर्स एज अ नॉलेज अथॉरिटी, वन वे नॉलेज ट्रांसमिशन, जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है वो बच्चे सुन रहे हैं. दैट हैपेंस. द लेक्चर डोमिनेंट डिलीवरी वाज देयर, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट वाज देयर, फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड कंटेंट ड्रिवन कैरिकुलम. ये हमारा ट्रेडिशनल एस्पेक्ट था. ये जो जिस मैथडोलॉजी से हम लोग पढ़ के आए हैं, दिस इज समथिंग विच वी हैव गॉन थ्रू. आई बिलीव कि हम सब इसी मेथड से होके आए हैं, मोस्ट ऑफ अस, इफ नॉट ऑल देन मोस्ट ऑफ अस. नाउअडेज अब जो चीजें बदल रही हैं, अगर हम उन बातों पे ध्यान दें, वी नीड टू हैव मोर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच. Means rather than just dictating, we need to be a facilitator or a guide. Rather than knowledge transmission, we need to focus on knowledge construction, knowledge creation. Rather than focusing on content delivery, we need to be more focused on activities and discussion. अगर जो हम बात कर रहे हैं ना इंक्लूजन की, तो वो तभी हो पाएगा. rather than standardized assessment कि आपने टेस्ट ले लिया, सिंपल क्वेश्चन आंसर दे दिए, एमसीक्यू ले लिया. we need to be more focused on project based authentic assessment. Rather than memorization, we need to focus on more on critical thinking. And rather than content delivery, content based curriculum, we need to be more focused on skill and competency driven learning. That is what all about learner centric approach. ठीक है. और अगर हम बात करें कि इंडिया की और जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं, तो टू मेक दिस थिंग हैपन, अगर हमें वाकई इंक्लूजन चाहिए, तो माय सजेशन, माय टेक इज वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच वेयर वी कैन हैव अ स्ट्रेटेजिक इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोथ learner-centric approach and teacher-centric approach, both as per the need of the student, as per the need of the curriculum. So for inclusive education, learner-centric approach accommodate the diverse learning needs, style and backgrounds. क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ लेक्चर नहीं देते, आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करते हो, उसको अपॉर्चुनिटी दे करके कि वो बताए कि वो क्या समझ रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है. That is all about it. अगर यहाँ कोई क्वेरी हो, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, वरना आगे चले हम लोग. कोई क्वेरी तो नहीं है? ओके. No, sir. नाउ मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले ये पूछना चाह रहा था कि आपको आपके क्लासरूम्स में अभी आज की डेट में आपको क्या लगता है कि हम लोग टीचर सेंट्रिक अप्रोच पे ज़्यादा चल रहे हैं या लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पे ज़्यादा चल रहे हैं? एंड आई रिक्वेस्ट जो लोग अभी तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर ना किए हों, अगर वो लोग पहले बताएं तो दैट इज रियली हेल्पफुल. आपको क्या लगता है आज जो हम क्लास ले रहे हैं, आप और हम जहाँ भी आप क्लास ले रहे हैं, व्हाट यू फील वेदर योर टीचिंग मेथड्स, योर टीचिंग पेडागॉजी इज फॉल ऑन
टीचर सेंट्रिक अप्रोच as of now or learner centric approach? What do you feel? क्या लग रहा है सर मैम? लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ज्यादा हो रहा है या टीचर सेंट्रिक अप्रोच? भावेश सर आप ही बताएंगे? ओके, एनीवन जो भी कुछ शेयर करा जाए आप बताएं, आपके यहाँ लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ज्यादा है या टीचर सेंट्रिक अप्रोच आज की डेट में आपकी क्लास में? कैसा आपको फील होता है? अनिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? टीचर सेंट्रिक अप्रोच ही है सर। टीचर सेंट्रिक अप्रोच है ना? हाँ Sir, learning is a continuous process as well as dynamic as challenging. वो तो है, हाँ. आई एग्री, आई डू एग्री विद दैट। आई एम जस्ट आस्किंग कि आज आपकी जो क्लासरूम्स है, व्हाट डज योर टीचिंग अप्रोच फॉल ऑन दिस स्पेक्ट्रम इन योर क्लासरूम टुडे, वेदर इट इज टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक? टीचर सेंट्रिक है ना? हाँ. तो थोड़ा सा हम लोगों को इस पे काम करने की हाँ. जरूरत है कि हम लोगों को कैसे इसको और लर्नर सेंट्रिक लेके चलना होगा। थोड़ा सा अगर हम बाकी इंक्लूजन पे फोकस करना चाहते हैं ना, माय सबमिशन इज वी नीड टू ऑप्ट सम बैलेंस अप्रोच टू मेक इट मोर लर्नर सेंट्रिक। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, ये देखिए, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पे फोकस ये नहीं होता कि क्या पढ़ाना है, वहां ये नहीं अप्रोच होता कि क्या पढ़ाना है, वहां ये अप्रोच होता है कि क्या सिखाना है ना? एंड अगर हम इसके एविडेंसेस रिसर्च की बात करें तो हम ये पा रहे हैं कि अगर जो टीचर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा देर तक रिकॉल कर पाते हैं, ज़्यादा जल्दी मेमोराइज करते हैं चीज़ें, और उनमें ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। एनसीईआरटी ने एक स्टडी की है 2023 में, विच आई हैव कोटेड इट हियर। इन द सेम टाइम यूजीसी की रिपोर्ट भी बोल रही है कि 26% ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जो आप सोशली इकोनॉमिक चैलेंज बोल रहे हैं ना बच्चों को, वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच में ज़्यादा पार्टिसिपेटिव है, राइट? और अगर हमें ये GER को 50% करना है ना, तो वी हैव टू मूव फॉर द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज द ट्रेडिशनल रोल इज जस्ट अ नॉलेज प्रोवाइडर, बट अभी जो हमें आज का रोल चाहिए ना, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स विच हैविंग सम डिफरेंट नीड्स, वी टेंड टू बी मोर अ मेंटर, a learner, a learning designer. So यहाँ पे जो मेरी समझ कहती है ना, the teacher role is sage on the stage to guide on the stage. Sage on the stage to guide on the stage. मतलब अब टीचर को ना स्टेज के बीचों बीच में खड़े होकर प्रतिनिधित्व नहीं करना है, वो नहीं बताएगा कि क्या और कैसे करना है। Rather, he should facilitate the student and let the student do the way they want to do, and then cross-examine their own activities in their own way. That is what it intended to. ठीक है, आप बताएं आप इसको कैसे इन्फर कर रहे हैं? Sage on the stage to guide on the stage. Anyone? Sage on the stage to guide on the stage. How you see the teacher's role transformation? Sage on the stage to guide on the stage. Teacher needs to act as a facilitator rather than directing the things. और उससे फर्क क्या पड़ेगा? Student
जो करना चाहता है, जो उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका बिलीव जो है, वो चीजों को अच्छे से खुद अपने इससे कर पाएगा. ही कैन डू इट इन अ बेटर वे इफ यू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, इफ यू जस्ट provide him with the resources, he can do the things in a better way. That is what I feel. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है. And it will build his confidence level as well also, no, that राइट. तो कहने का मतलब ये है, द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि जैसे होता था ना कि पहले समय में हम लोग पढ़ाते आए हैं कि गुरु कहता था पात्र देखो, पात्र की पात्रता देखो और अपना ज्ञान उसमें उड़ेल दो, है ना. तो अभी आज के समय में बाल्टी भरने वाला चक्कर नहीं है कि बच्चा एक खाली दिमाग है, एक बाल्टी है और उसमें अपना आप ज्ञान भर दीजिए. क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे कि वो बाल्टी का पानी फिर छलकेगा भी, वो गिरेगा भी और वो एक जगह रहेगा ही. रादर देन अगर आप कहते ना पाइलिंग द वाटर, फिलिंग द पाइल, अगर आप ये ना करके इफ यू जस्ट लेट द फायर इग्नाइट द विजडम, द फायर, that spark within them, then definitely they will grow rapidly. वो फिर वहाँ रुकेंगे नहीं. That is the point. If you can just एक quote है, I have just mentioned here, maybe yes, education is not the filling of a pail but lightning of a fire. J.B. Yeats ने कहा है, एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ पेन, बाल्टी भरना ही नहीं है, बट लाइटनिंग ऑफ ए फायर. इट्स जस्ट लाइक ए लाइटनिंग ऑफ ए फायर. जब जस्ट थिंक ऑफ ए बकेट, अगर आप उसमें पानी भर रहे हैं, इफ टीचर्स रोल इज जस्ट अ टीचर सेंट्रिक अप्रोच की क्लास में बच्चा बैठा है, जो हमको आता है हम उसको पढ़ा दे रहे हैं, लाइक दैट फिलिंग ऑफ द पाइल, देन द प्रॉब्लम इज कि they can spill, they can leak, and sometimes they will not apply this knowledge. They feel like कि हाँ मुझे मिल गया, मेरे पास हो गया, that's it. But if you just make this spark, you can ignite the spark within them now, then they will, and you act like a match, then they will really blossom. They will really light. If you light the fire, na, they will grow, and they will grow. They will light others also, because वहाँ पे ना लर्निंग बढ़ती जाएगी. आपसे उन्होंने सीखा है, उनका रियलाइजेशन उनके सीखने की लेवल को और बढ़ाएगा और उसको वो आगे बढ़ाएंगे. That's why this happens. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. सेज ऑन द स्टेज वाला मामला ये है ना कि टीचर कहता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, जो स्टेप्स, जो चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ तुम्हें एग्जैक्टली वही फॉलो करनी है. इन दिस केस टीचर विल एक्ट एज अ इंस्ट्रक्टर एंड अ क्लियर कट कमांडिंग वे कि आपको ये इसके बाद करना है. But when the teacher is more on a mentor side, on a guide side, then the student will experience the entire journey. Just imagine, अगर मान लीजिए आप कभी माउंट एवरेस्ट, मतलब आप कभी माउंटेन्स पे चढ़ाई करें, है ना, कभी भी आप अगर माउंटेन्स पे जाएं, then there are two things. जहाँ पे एक गाइड आपको बोलता है कि जैसे मैं बोला बस वैसे वैसे करते जाइए, you will follow the instruction, then it might be a possibility that you will not enjoy the experience at all, क्योंकि आपका दिमाग मोर और लेस केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में लगेगा. बट अगर वहां पे ही गाइड आपको ये थोड़ी लिबर्टी देता है कि साहब ये ऐसा है, आपको ऐसे ऐसे करना है, एंड देन यू हैव सम लिबर्टी टू डू सम थिंग्स ऑन योर ओन, देन you may commit some mistakes, but that will actually embrace the learning process. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जब आप माउंटेन चढ़िएगा तो आप ऐसा ही करिएगा, but that will actually embrace the learning process, which is actually
or I feel more important than any other thing. Now let's have some more practical approach. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हम अपने इंडियन कॉलेज सिस्टम की बात करें, देन वी हैव कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप्स इन IIT बॉम्बे व्हिच इज नोन एज थिंक पेयर एंड शेयर. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की अगर हम बात करें तो अशोका यूनिवर्सिटी इज देयर इन दिस दिल्ली एनसीआर रीजन, और यू कैन से इन हरियाणा, right? Then we have a field experience like TIS Mumbai, Tata Institute of Social Sciences. They are very well planned. Their social work programs where they will give the field experience to all the students. Flip Classroom, BITS Pilani, St. Xavier's Mumbai will have a discussion-based learning, and AIMS Delhi, you know AIMS, they have in their practical exercise and tutorials. So these all are the examples of the learning-centric approach, and definitely the learner-centric approach will increase the engagement, better retention, enhance the critical thinking, and higher the satisfaction among the all class. So that is from my side, and yes, we have some evidences also, but अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूँ. Now from this thing I just want to connect one more thought. Knowledge transmission versus knowledge construction. जब हम टीचर सेंट्रिक अप्रोच में रहते हैं तो वी आर मोर इंटेंडेड फॉर दैट नॉलेज ट्रांसमिशन. आपके पास जो जानते हैं आप, वो आप दूसरों को बताते हैं, बिकॉज इन दिस केस टीचर विल एक्ट एज एन एक्सपर्ट. Most of the time the one way flow will be there and focus is on content delivery, है ना. And when we have a knowledge construction approach now, teacher act as a facilitator, focus on the learning process, and we are more intended for the application part. So definitely I believe with the changes of environment, because अब memorization वाला काम रह गया, there are lots of changes and development taking place in the field of AI as well, information technology as well. So we are more intended, we must more intended for this critical thinking part. Okay, इसको भी स्किप करते हैं. अच्छा, आप में से कोई प्लीज मुझे पहले बताएगा कि what you actually feel, what you mean from this term critical thinking. Critical thinking से आप लोग क्या समझते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा? आपने ये टर्म सुना है पहले, क्रिटिकल थिंकिंग? अभी हमने यहाँ यूज किया. जी, क्रिटिकल थिंकिंग कोई बताएगा? क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग? एनीवन? सर, कोई भी चीज को अरे पढ़ने के बाद खुद सोचना और खुद उसके बारे में ऑब्जर्वर करके सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद खुद की सोच बनाना तो उसको प्रूव करना. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ये क्रिटिकल थिंकिंग है. मींस इन द शॉर्ट थिंकिंग हम नहीं ले रहे हैं. किसी ने कुछ कह दिया तो हम उसको मान नहीं रहे हैं कि वो एज इट इज है. रादर वी विल वेरीफाई, वी विल एग्जामिन, वी विल एनालाइज कि वाकई क्या ये सच है या नहीं है. ठीक है, राइट सर? यस सर, यस. दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. ओके, सो प्रूव करना. हाँ, जब तक हमको लगता नहीं कि ये सही है, उसको ऑब्जर्व करना, उसका आउटकम मिल रहा है क्या, तब जाके मानना कि नहीं हाँ ये ठीक है. आउटकम निकल रहा है मतलब यानी कोई चीज प्रयोग में, अभी जैसे NEP का एग्जांपल देंगे हम, तो उन्होंने तो स्ट्रक्चर रखा है, हम प्रयास कर रहे हैं उस आधार पर बच्चों को देने का, है ना. तो सही में वो पहुंच रहा है या बच्चा कर पा रहा क्या, या अभी हम तो प्रयास ही प्रयोग ही कर रहे हैं. तो जब हम पूरा होगा सत्र
तब जाके कितने बच्चों को वो चीज पूरी तरह से समझ पाई, कितने बच्चे वहां से ठीक है निकल सर, पाए, तब जाके हम बोले। मेरा अप्रोच सिंपल है। आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज आया ना, आपने देख करके तुरंत बिलीव नहीं किया, आपने उसके फैक्ट्स एनालाइज किए बिफोर फॉरवर्डिंग एनीथिंग। अगर आप उसको देख के एनालाइज कर रहे हो, अगर आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट, एंड व्हेन यू वेरीफाई एंड देन यू विल बिलीव, देन इट इज ए क्रिटिकल थिंकिंग, है ना सर? मतलब किसी भी चीज को जैसा कहा गया है, अगर आप फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे हो, बिकॉज इन टुडेज इन्वायरमेंट ना, यू नीड टू बी मोर विजिलेंट, दैट इज द पॉइंट। और यहाँ पे अभी हमने जो बात कही थी नॉलेज ट्रांसमिशन और नॉलेज कंस्ट्रक्शन की, इस बात का सार भी यहीं पे है सर। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा अपनी बात, आप सभी लोगों को, आप सभी महानुभावों को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नॉलेज ट्रांसमिशन सही है या गलत, या ये नॉलेज कंस्ट्रक्शन अच्छा है या बुरा। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी अपनी है, और आज के सिनेरियो में हमें एक बैलेंस अप्रोच चाहिए जहाँ पे एक फ्यूजन हो सके नॉलेज ट्रांसमिशन का और नॉलेज कंस्ट्रक्शन से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आप बताइएगा कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। मान लीजिए आपको चाय बनाने नहीं आती। चाय हम लोग सब किचन में बनाते हैं, एंड आई बिलीव चाय एक ऐसी चीज है जो हम सब बनाते हैं। मोस्ट ऑफ अस, अगर हमारा यहाँ पे अभी 50 लोगों का बैच है, अभी हमारे साथ 40 लोग लगभग जुड़े हुए हैं, तो हमको लगता है कि इन 40 में से ज्यादातर लोगों को चाय बनाने आती होगी। यस सर। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कि जब आपने पहली बार चाय बनाना सीखा था, जब आपको पहली बार किसी ने चाय बनाना बताया था, that was the time when you actually go through with this knowledge transmission part। मतलब बताने वाला आपको बता रहा था कि आपको पानी कितना लेना है, आपको दूध कितना लेना है, आपको कब चाय पत्ती डालनी है, कब चीनी डालनी है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस which you may consider adding in your tea recipe। ठीक है, ये हो गया नॉलेज ट्रांसमिशन वाला पार्ट। कितना नॉलेज ट्रांसमिशन है ये अभी मैंने बताने वाले ने आपको बताया। नाउ अब जब आप चाय बना रहे हो अपने किचन में, नाउ बेस्ड ऑन द इनिशियल मेन कोर रेसिपी, आप जब चाय बनाते हो, समटाइम्स